Welcome to our online class from High Star and North City Public Secondary School and College. This is our bio class. We will continue chapter number 7, bioenergetics, and our lecture number is 3. Our topic is chloroplasts as trapping, light trapping and storage organelle. Green part of plants and algae contain a special cell which contain a special organelle called chloroplast. Chloroplast is a double membrane bounded organelle, have a semi-fluid protein containing medium called stroma. Another network of membrane is also embedded in it called thylakoid membrane. Somewhere these thylakoid are piled at one another in a stack called grana, singular grana. The simple looking reaction of photosynthesis is not as simple as it looks. It involves number of chemical reactions which are catalyzed by a number of enzymes, either in non-cyclic or cyclic waves. Each reaction occurs at different sites in chloroplast. That is, plants के जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं या अल्जाई में जो एक खास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिनमें खास किस्म के ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। इसमें जो मेम्ब्रेन की एक जाल बिछा हुआ होता है जिसको हम थाइलोक्लोराइड मेम्ब्रेन कहते हैं। ये एक दूसरे पर जमी हुई होती है जिसको हम ग्रेना या ग्रेनम कहते हैं। फोटोसिंथेसिस का सादा सा नज़र आने वाला अमल जो है वो असल में इतना सादा नहीं होता जितना वो नज़र आता है। इसमें बहुत से कीमियाई रिएक्शंस मौजूद होते हैं और बहुत से एंजाइम्स जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं। ये अमल साइक्लिक भी और नॉन साइक्लिक में अंदाज में अमल पजीर होते हैं और हर रिएक्शन जो है क्लोरोप्लास्ट में मुख्तलिफ जगहों पर अमल पजीर होता है। जैसे नंबर 1, reactions in which light energy converted into chemical energy and stored in ATP, androgen triphosphate, and NADPH2 reduce nicotine amide androgen dinucleotide phosphate. This conversion occurs at thylakoid membrane where solar energy is captured by pigment locating in the harvesting complex. This phase of photosynthesis is called light-dependent reaction. It is non-cyclic process coupled with breakdown of water molecules, that is photolysis take place also at thylakoid membrane. वो रिएक्शन जिसमें लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, तब्दील हो जाए और ATP और NADPH2 जो है वो ऑक्सीडाइज होकर रिड्यूस हो जाए, बन जाए, स्टोर हो जाए इस फॉर्म में, यानी कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और ये जो दो कंपाउंड हैं ये आपके स्टोर हो रहे हैं एज एनर्जी। इस कन्वर्जन को, ये जो कन्वर्जन है ये कहाँ पर होती है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है, जहाँ सोलर एनर्जी इन पिगमेंट्स को सोलर एनर्जी कैप्चर कर लेता है। और इस अमल को, जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, इसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं और ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस होता है और जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है और इसको हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। नंबर 2 फिगर आपको दी हुई है यहाँ पर। नंबर 2 में दिया हुआ है रिएक्शन इन विच कैप्चर सोलर एनर्जी ट्रांसफर्ड टू ग्लूकोज फ्रॉम ATP and NADPH2. It takes place in stroma in cyclic manner. During this phase, fixation of atmospheric carbon dioxide also takes place to form organic molecules. सेकेंड आपको दिया हुआ है वो रिएक्शन जिसमें ATP और NADPH2 से ग्लूकोज में मुंतकिल हो जाती है। ये वाली जो एनर्जी है वो ग्लूकोज में ट्रांसफ़र हो जाती है और ये रिएक्शन स्ट्रोमा में साइक्लिक वे में अंजाम होता है और इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होकर ग्लूकोज बनाते हैं। 2 phases of photosynthesis. Process of photosynthesis is mainly divided into phases of reaction. Number 1, light reaction or light dependent reaction, और number 2, dark reaction और light independent reaction. फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है हम इसको 2 फेज में डिवाइड करते हैं, एक है लाइट रिएक्शन और दूसरा है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन।
The term light reaction or light-dependent reaction is used due to the reason that during this phase of photosynthesis, light energy is captured and converted into chemical energy. Some of the light is utilized to split water into oxygen and hydrogen with electrons. This splitting of water is called photolysis. Oxygen, which is produced during photolysis, is released in the environment, whereas H positive together with carbon dioxide are used in building glucose. ये ड्रम फोटोसिंथेसिस, ये ड्रम लाइट रिएक्शन या लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल होती है। इस्तेमाल होने की वजह ये है कि सेल जो है वो फोटोसिंथेसिस के इस हिस्से के दौरान कीमियाई यानी कि केमिकल एनर्जी में मुंतकिल हो जाता है। रोशनी का कुछ हिस्सा पानी को हाइड्रोजन आयन और ऑक्सीजन गैस में मुंतशिर कर देता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी खारिज हो जाते हैं। पानी के इस मुंतशिर होने वाले अमल को हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को हम फोटोलाइसिस भी कहते हैं। और ये इस दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट में खारिज होती है, जबकि H पॉजिटिव कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। In chloroplasts, different pigments absorb light of different wavelength. Among them, chlorophyll is a main light capturing molecules in thylakoid membrane, which absorb violet, blue, and red light, but reflects green. Therefore, it appears green. In the thylakoid membrane, other pigment and electrons carrier molecules form highly organized assembles in a series called photosystem. Each thylakoid contains thousands of copies of different kind of photosystems called photosystems 1 and 2. Each consists of two major parts, a light harvesting complex and an electron transport system. क्लोरोप्लास्ट में मौजूद पिगमेंट जो है मुख्तलिफ वेवलेंथ वाली रोशनी को जब्स करते हैं। इनमें क्लोरोफिल थैलाकोइड मेम्ब्रेन पर पाए जाने वाला और रोशनी को जब्स करने वाला अहम मॉलिक्यूल है, जो वायलेट, ब्लू और रेड रोशनी को तो जब्स करता है, और सब्ज जो ग्रीन कलर होता है उसको वो रिफ्लेक्ट करता है। इसी वजह से पत्ते हमें ग्रीन नजर आते हैं। थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में दूसरे पिगमेंट और इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल इस तरतीब से बनते हैं। इस तरतीब को हम फोटोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइट रिएक्शन की स्कीम बताई है। यहाँ पे दो बताए हुए, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। The conversion of light energy take place when the chlorophyll of reaction center receive energy. One of the electrons from chlorophyll A molecule leaves and jump over the electron transport system. The energized electron moves from one electron carrier to the next. The electron releases energy. When it comes down, this energy drives reaction and produces two energy-rich compounds. These are ATP, adenosine triphosphate, and NADPH2, reduced nicotine, amide, adenosine dinucleotide phosphate. ये जो कन्वर्जन है लाइट एनर्जी का, ये उस वक्त शुरू होता है जब रिएक्शन सेंटर का क्लोरोफिल लाइट वसूल करता है, यानी कि हासिल करता है। क्लोरोफिल का एक इलेक्ट्रॉन उसे छोड़कर जो फोटो सिस्टम में कूद जाता है। ये तवानाई से जो लेवरेज होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल से दूसरे इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल होता है, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी इजाफी एनर्जी को खारिज करता हुआ नीचे आता है। और तवानाई बहुत से रिएक्शन को अमल पजीर होने में मदद देती है। दूसरा ये कि ये तवानाई वाले दो मॉलिक्यूल्स पैदा होते हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल्स का क्या नाम है? एक का नाम है ATP और एक का नाम है NADPH2। ADP is the compound which is already present in the cell. It combines with phosphate by using energy of photon released from when moving through electron carrier in photosynthesis. ADP plus P gives ATP. NADP
NADP also present in chloroplast is reduced into NADPH2 by accepting electron ions. H positive releases from splitting of water. NADP plus 2 electron plus 2 H positive ion gives NADPH2. ATP and NADPH2 both are rich energy compound which provide energy. Hydrogen and electron for the conversion of atmospheric carbon dioxide into carbohydrates in chloroplast during the light independent phase of photosynthesis. ADP वो कंपाउंड है जो सेल में पहले से मौजूद होता है। ये फॉस्फेट के साथ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस्तेमाल करके उससे जुड़ जाता है। इसके नतीजे में ATP मॉलिक्यूल बनता है। ये एनर्जी इस वक्त रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन फोटोसिंथेसिस में मौजूद होने वाले इलेक्ट्रॉन ले जाने वाले मॉलिक्यूल के जरिए बुलंदी से नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन दी हुई कि ATP प्लस P जो है वो ATP बन रहा है। ठीक है, इसमें एंजाइम्स की भी एंजाइम भी काम कर रहे हैं और वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं। NADP भी क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है जो कि H पॉजिटिव के मिलाप से रिड्यूस हो जाता है और H पॉजिटिव जो पानी के इंतशार से पैदा हुए होते हैं। और आप देख रहे हो कि जब इस कंपाउंड में हम 2 इलेक्ट्रॉन और 2 H पॉजिटिव पॉइंट रिएक्ट कर रहे हैं तो वो NADP को NADPH2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये दोनों जो हैं वो तवानाई से भरपूर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फिजाई कार्बन डाइऑक्साइड H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और एनर्जी प्रोवाइड करके कार्बोहाइड्रेट्स में तब्दील हो जाते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं। आगे के टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।